Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today we are going to do a lesson of history of class 8, lesson number 5, social and religious reforms. A few days back I did lesson the freedom struggle of 1857. We saw how the people of entire India came together to fight against the Britishers. Though we lost it because we lacked comprehensiveness, we lacked a proper leadership, but still there was a hope that one day we will get the freedom, and from that time onwards we started our freedom struggle. Now, coming to this lesson today, before going ahead, one request as I ask you every time, please do like my channel videos, and if you have not subscribed my channel videos, please do subscribe them and also share them with your friends. So let's study social and religious reforms. About this chapter, I'll let you know this chapter is basically for objectives. Most of the objective type questions are going to be asked from this chapter. So there are many organizations which were set up to do many kind of social reforms. This chapter is basically on reforms. Reforms means the changes which were brought about by the Indian leaders or some front footers who came forward, and when they saw that these things in the society are not doing good, are not well, they came forward, they fought against these things which were not at all good for the progress of society. They fought for all these things and finally they brought a change. So this change, after fighting for the right thing, this change is called as reforms. So there are many social reformers, many organizations which were set up also before 1947 and after 1947 also. That means before the independence also there were many institutions which were set up for such reformation of the society, and after independence also many institutions were set up. So in this chapter we are going to learn about the leaders and the institution they formed and what contributions they gave towards the reformation of the society. So let's start with the first thing. Along with spread of English education, there was spread of new thoughts, new ideas, new philosophy. Indians were also introduced to Western thoughts and culture, and due to it there were changes in social, religious, economic and cultural aspects of Indian society. Now in this paragraph if we study that जैसे ही इंडियंस ने इंग्लिश में एडुकेशन लेना स्टार्ट किया, जब ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश में एडुकेशन देना स्टार्ट किया इंडियंस को, और जब इंडियंस पढ़ने लगे तो उनके दिमाग में नए थॉट्स, नए आइडियाज़, नई फिलॉसफी आने लगे. नए थॉट्स मतलब नई सोच, नए आइडियाज़ मतलब नए तरीके, एंड न्यू फिलॉसफी मतलब कोई भी चीज़ को गहराई में जानो उसके बारे में और उसे कहो, सच कहो, टॉक द ट्रुथ एंड द राइट थिंग. और सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो ना, उसे सच कहना चाहिए. तो वो फिलॉसफी, न्यू फिलॉसफी आई है. दे वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू द वेस्टर्न थॉट्स एंड कल्चर, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पे इंडिया में अपना एजुकेशन सिस्टम लेकर आए थे, तो उनका कल्चर और उनका थॉट भी उनके एजुकेशन सिस्टम में था. तो इंडियंस बिकेम अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दे गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल दिस थॉट्स एंड कल्चर. अभी हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में कैसा कल्चर होता है. फॉरेन कंट्रीज़ में एकदम फ्री रहते हैं. इंडिया में हम इतने फ्री नहीं रहते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में एकदम फ्री रहते हैं. तो अगर कभी हम फॉरेन कंट्री में रहने जाते हैं तो हमें एकदम अच्छा लगता है कि सब फ्री है, कोई बंदिशें नहीं है. और जब वापस हम अपने कंट्री में रिटर्न होते हैं तो हमें लगता है कि अरे हम वापस से कहाँ आ गए, काश हम वहीं रहते. तो हम कोशिश करते वहाँ के जैसा माहौल बनाने की. तो वैसे ही जब इंडियंस स्टडी करने लगे थॉट एंड कल्चर, वेस्टर्न थॉट एंड वेस्टर्न कल्चर को, तो उन्होंने कोशिश की कि उन्हीं चीज़ों को कुछ कुछ जगहों पर हम इंडिया में अपना सकते हैं. हम क्यों नहीं कर सकते? वो सही कर रहे हैं और हम गलत कर रहे हैं, तो हमें हमारे गलत को सही करना है. सो इसी वजह से देयर वर मैनी चेंजेस इन सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स. सोशल मतलब हमारी सोसाइटी, रिच क्लास, पुअर क्लास, हम जो भी बोलें.
रिलीजियस यानी धर्म, रिलीजियन, इकोनॉमिक यानी मनी वाइज, रिच पुअर, एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स हम बोल सकते हैं हमारी संस्कृति, है ना, वॉट एवर वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, द इनहेरिटेंस ऑफ आवर कल्चर, दैट मीन्स मे बी इट्स रिलीजियन, वे ऑफ वर्शिपिंग, ड्रेसिंग, ईटिंग फूड हैबिट्स, and many such things. All these come under cultural aspects of Indian society. The modern educated Indians became aware that the backwardness of India was due to the superstitions, casteism, old customs, class systems, and lack of critical outlook. Now, there were some people who had already taken up this Western education. So these educated Indians, when they became aware that why our country is so behind, why we are slaves of the Britishers, when they realized this thing, they understood that this is all because of the backwardness of India due to the superstitions. The backwardness was due to the superstitions, casteism, है ना, हम अंधविश्वास में यकीन करते थे, कास्ट में बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, ये जाति वो जाति, ओल्ड कस्टम्स, रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाज, क्लास सिस्टम, अमीरी गरीबी का या ऊंचा खानदान नीचा खानदान, ये जो क्लास सिस्टम था, एंड लैक ऑफ क्रिटिकल आउटलुक, मतलब हम किसी भी गलत चीज़ को गलत मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, अगर हमारे इसमें आता है ये चीज़, हमारे कास्ट में, हमारे रिलीजन में, सब में आता है तो वो अच्छा ही है, मतलब हम कभी भी किसी को एनालाइज नहीं करते थे कि ये गलत भी हो सकता है। तो इसी वजह से हमारी इंडियन सोसाइटी जो थी वो बैकवर्ड थी, और ये मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। सो उन्हें लगा कि इट वॉज नेसेसरी टू इरेडिकेट द फ्लॉज एंड अनडिजायरेबल टेंडेंसी फॉर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। उन्हें लगा कि ये जो भी कमियां हैं, फ्लॉज यानी कमियां, एंड अनडिजायरेबल टेंडेंसी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, यानी लोग चाहते ही नहीं है कि कंट्री का प्रोग्रेस हो, वही पुरानी तकियानुसी बातों को लेकर ही आगे चल रहे हैं, उन्हें वही काम करते रहना है, कुछ नया सीखना ही नहीं है, नो प्रोग्रेस। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स आवर country was not progressing, and therefore it was necessary to eradicate all these things from our country, है ना, to eradicate, to remove, खत्म कर देना है, and to create a new society based on the principles of humanity, equality and fraternity। और जो भी हम नया सोसाइटी बनाएंगे रिफॉर्मेशन के बाद, चेंजेस लाने के बाद, that society will be based on new principles, that is of humanity, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ह्यूमैनिटी इंसानियत का नाता, इक्वालिटी सब इक्वल है, सब एक समान है, एंड फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड, भाईचारा। तो ये प्रिंसिपल सभी अपनाएंगे इन अ न्यू सोसाइटी, यानी कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। द एडुकेटेड थिंकर्स स्टार्टेड सोशल अवेयरनेस थ्रू राइटिंग्स टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। तो ये जो एजुकेटेड थिंकर्स थे उन्होंने लिखना चालू किया। They started writing and creating awareness, social awareness among the people। लिखकर लोगों को सोशली अवेयर करने की कोशिश की थी, जागरूक करना, अवेयर करना यानी जागरूक करना। The intellectual awakening in the contemporary society is called Indian Renaissance। तो ये जो intellectual awakening है, intellectual awakening means the awakening brought about by the educated people। Intellectual awakening means the awakening brought about by the educated people, यानी जो पढ़े लिखे लोग इस कोशिश में लगे हुए थे कि चेंजेस लाने हैं, उसे हम इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग कहते हैं। एंड इन द कंटेम्पररी सोसाइटी, यानी उस वक्त जो सोसाइटी में था कंडीशन, द कंटेम्पररी सोसाइटी इज कॉल्ड इंडियन रेनेसांस, दैट इज कॉल्ड इंडियन रेनेसांस। एरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। अभी रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, एरा मतलब युग, ये जैसे है ना, ये एक मानो एक युग सा चल गया था रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स का। सब जगह पे जहां देखो वहां पर सोशल लीडर्स आगे आ रहे थे और कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाने की, बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहला हम देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रह्मो समाज। In 1828, Raja Ram Mohan Roy established the Brahmo Samaj in Bengal। तो कब? In 1828 राजा राम
राजा राम मोहन रॉय, ये जो है राजा राम मोहन रॉय, ही इस्टेब्लिश द ब्रह्मो समाज इन बंगाल। बंगाल में उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन नेम्ड एज ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था। विच ईयर में? 1828 में। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फिल इन द ब्लैंक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। दैट इज ब्रह्मो समाज बाय वॉज क्रिएटेड बाय हुम? दैट इज राजा राम मोहन रॉय। और अगर आपको आ सकता है व्हाट नेम द इंस्टीट्यूशन दैट वाज क्रिएटेड बाय राजा राम मोहन रॉय, सो यू कैन राइट ब्रह्मो समाज। इट कैन कम एज नेम द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, any way it can come. He had studied many languages and religions. Raja Ram Mohan Roy was a very educated, was a very intelligent person. He had studied many languages and many religions. इंडिया में जितने भी रिलीजन्स थे ऑलमोस्ट सबको उसने पढ़े होंगे। एंड थ्रू इट हिज आइडियोलॉजी ऑफ अद्वैता फिलोसफी वॉज डेवलप्ड। तो इन्हीं वजह से, जो उसने इतने लैंग्वेजेस और रिलीजन्स को पढ़ा था, इन्हीं वजह से उन्होंने एक आइडियोलॉजी अपनी बना ली थी ऑफ अद्वैता फिलोसफी। व्हाट इज अद्वैता फिलोसफी? अद्वैता फिलोसफी इज टू नो वन सेल्फ, अपने आप को जानना। दैट इज यू नो योर सेल्फ एंड मतलब योर वन सेल्फ विथ योर सोल, अपनी आत्मा से अपने आप की पहचान कराना। दैट इज कॉल्ड अद्वैता। मोनोथिज्म, कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल एंड फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स वर द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्मो समाज। यानी ब्रह्मो समाज कौन से प्रिंसिपल्स पे चलता था, क्या क्या फॉलो करता था? दैट मीन्स मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मीन्स फॉलोइंग ओनली वन रिलीजियन, अलग अलग रिलीजन को नहीं मानना। यानी जितने भी लोग हैं दे शुड फॉलो ओनली वन रिलीजन। एक ही कास्ट होना चाहिए सबका, कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी सभी इक्वल होने चाहिए कास्ट के हिसाब से और क्लास के हिसाब से। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स, और किसी भी तरह का रिचुअल, रीति रिवाज नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स एंड फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स, और प्रार्थना करो, ये चीजें फॉलो करो। सो दीज वर द थिंग्स, ये पूरा वर्क है ऑफ ब्रह्मो समाज बता रहा है। क्या बता रहा है ब्रह्मो समाज? राजा राम मोहन रॉय ने तो बिलीव किया था अद्वैता फिलोसॉफी, दैट मीन्स आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विथ वंस ओन सोल। और दूसरा है मोनोथिज्म, यानी एक ही गॉड को मानना, कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स, यानी किसी भी तरह का रीति रिवाज को नहीं करना, एंड फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स वर द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्मो समाज। प्रेयर्स को फॉलो करना, ये सारे प्रिंसिपल्स थे ब्रह्मो समाज के। ही अपोज्ड सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम। He promoted widow remarriage and female education. He founded Hindu College in Calcutta. He created public. He opposed sati practice, child marriage, parda system. That is sati practice. We know that sati means when husband dies, wife has to sit on that fire blare of that husband's dead body, on that blaze and burn oneself. That is sati. Child marriage मतलब at very young age the girls used to get married. Parda system, that is women were not allowed to show their face. There was a parda in front of their face. This was especially in Muslims and Hindus both. So he opposed all these practices, which is such as sati practice, child marriage, parda system. These practices were opposed by Raja Ram Mohan Roy through Brahmo Samaj. And he promoted widow remarriage and female education. Widow remarriage and female education was promoted. That is, if a girl child becomes widow at an early age, the girl should remarry. And also, women should be given the right to education. They should be given education. He founded Hindu College in Calcutta. कलकत्ता में हिंदू कॉलेज भी उन्होंने establish की. He created public awareness through the newspaper संवाद कौमुदी. तो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट किया था थ्रू द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी. दिस इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एंड थ्रू न्यूज़पेपर ही स्टार्टेड क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, दैट इज मेकिंग पीपल अवेयर द इल इफेक्ट्स ऑफ व्हाट थिंग्स वर हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड ट्राई टू चेंज दोज इल थिंग्स एंड मेक देम गुड. सो न्यूज़पेपर्स का काम यही था बेसिकली, लोगों में अवेयरनेस फैलाना. और बहुत सारे लीडर्स ने इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है न्यूज़पेपर्स के थ्रू स्प्रेड किए थे. नाउ नेक्स्ट इज प्रार्थना समाज. प्रार्थना समाज
In the beginning it was not as Pratna Samaj, its actual name was Paramhansa Sabha and it was started by Dadoba Pandurang Tarkhadkar, है ना, दादोबा पांडुरंग तरखड़कर, and he established this sabha, Paramhansa Sabha, in 1848. तो दादोबा पांडुरंग तरखड़कर established this Paramhansa Sabha in 1848. But Paramhansa Sabha was dissolved due to some issues. It was dissolved. Dissolved मतलब वो बंद कर दिया गया हमेशा के लिए. लेकिन उसके ही कुछ members जो थे, they again came forward and they formed a new organization named as Prathna Samaj. तो Paramhansa Sabha and Prathna Samaj are one and the same, mostly, not different. परमहंसा इंस्टीट्यूशन का नाम पहले रखा गया था, लेकिन फिर बाद में उसे डिसॉल्व करके वापस से एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिसका नाम था प्रार्थना समाज. और इसके पहले प्रेसिडेंट, प्रार्थना समाज के पहले प्रेसिडेंट दादोबा के बड़े भाई डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग बने थे. डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज. और प्रार्थना समाज की इम्पोर्टेंस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, प्रेस्टीज, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. क्यों? क्योंकि प्रार्थना समाज में फ्रेशली एजुकेटेड ग्रेजुएट्स जो मुंबई यूनिवर्सिटी से होकर आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने, ग्रेजुएट्स ने ये प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया था. दैट इज द प्रेस्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंक्रीज ड्यू टू द एनरोलमेंट ऑफ यंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. जस्टिस रानडे, डॉक्टर R.G. भंडारकर कैरिड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज. मतलब वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने तो किया ही, उसके बाद में जो दूसरे लोग आए हैं प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देवर जस्टिस रानडे एंड डॉक्टर R.G. भंडारकर. उन्होंने प्रार्थना समाज का काम आगे बढ़ाया. अब प्रार्थना समाज क्या फॉलो करता है? व्हाट वर्क प्रार्थना समाज डज? द अपोजिशन ऑफ आइडल वर्शिप, मतलब सिर्फ मूर्ति की पूजा करना, ये अपोज करते हैं. मोनोथीज्म, ऑपोजिशन टू रिचुअल्स वर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रार्थना समाज. मोनोथीज्म मतलब ये भी वही मानते हैं कि पीपल शुड बिलीव इन वन गॉड, एंड ऑपोजिशन टू रिचुअल्स वर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रार्थना समाज. ये भी रिचुअल्स को नहीं मानते, यानी किसी भी तरह के रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, वो नहीं होने चाहिए. दे स्ट्रेस्ड ऑन डिवोशन एंड प्रेयर्स, एंड प्रार्थना समाज दे ऑलवेज एम्फेसाइज्ड ऑन, किस पर ज्यादा स्ट्रेस किया, किस बात पर ज्यादा जोर दिया? प्रार्थना करो, भक्ति करो. डिवोशन, डिवोशन इज भक्ति, एंड प्रेयर्स, प्रेयर्स यानी प्रार्थना करो. फॉर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, प्रार्थना समाज स्टार्टेड ऑर्फनेज, वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, नाइट स्कूल्स फॉर वर्कर्स एंड सोसाइटी फॉर दलित्स. मतलब सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए प्रार्थना समाज में जो बड़े बड़े स्टेप्स लिए थे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे, उनमें से कुछ ये थे. ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मीन्स अनाथ आश्रम. देन वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, वुमेन्स को पढ़ने लिखने मिले, इसके लिए उनके लिए स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाई. फिर ऐसे कई वर्कर्स थे जो पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि दिन में उनको काम करना पड़ता था, लेकिन पढ़ने की बहुत इच्छा थी, तो उनके लिए नाइट स्कूल्स बनाई प्रार्थना समाज में. नाइट स्कूल्स फॉर वर्कर्स एंड सोसाइटी फॉर दलित्स. और ऐसे दलित लोगों के लिए एक सोसाइटी. दलित लोगों को नॉर्मली कोई भी अपने पास नहीं फटकने देता था, अपने दूर से ही उनसे बात करते थे या दूर ही उनको बिठा के रखते थे. उस वक्त की सोसाइटी दलित लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे. तो ऐसे दलित्स के लिए एक सोसाइटी बनाई, दैट इज पीपल हु कैन स्टे टुगेदर एट वन प्लेस. महर्षि विठल रामजी शिंदे, अ मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज, एस्टैब्लिश्ड डिप्रेस्ड क्लास मिशन. तो उन्हीं में से महर्षि विठल रामजी शिंदे, ये प्रार्थना समाज के ही एक मेंबर हैं. उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट वाज नोन एज डिप्रेस्ड क्लास मिशन. एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की विच वाज नोन एज डिप्रेस्ड क्लास मिशन. जैसे नाम ही बताता है, डिप्रेस्ड क्लास मिशन, मतलब जो पिछड़े जाति के हैं उन लोगों की क्लास है ये, मतलब उन लोगों के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है. और ये मिशन उनके लिए है कि उनको इस तरह के हर तरह के सोशल एविल्स से बचाना है. एंड थ्रू द मिशन एन अटेम्प्ट वाज मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स, यानी उनके जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने हैं. सत्यशोधक समाज, महात्मा ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज इन 1873. सो हु वाज द पर्सन बिहाइंड सत्यशोधक समाज? महात्मा ज्योतिराव फुले. उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था सत्यशोधक समाज इन 1873. ये सब हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर रहे हैं.
सत्यशोधक समाज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ इक्वालिटी। सत्यशोधक समाज ने किन चीजों पर सत्यशोधक समाज ने किन चीजों पर काम किया सोसाइटी में? इट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, यानी सोसाइटी को इक्वालिटी पे बनाना है पूरा, इस काम के लिए उन्होंने मेहनत की है सत्यशोधक समाज ने। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, कि किसी भी तरह का भेदभाव, अनटचेबिलिटी, छूत अछूत ना हो, उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। दे एडवोकेटेड एडुकेशन अमॉन्ग द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड वुमेन, तो जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस थे उन लोगों के लिए एडुकेशन स्टार्ट किया, वुमेन्स के लिए एडुकेशन स्टार्ट किया कि वो लोग अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है खुद अपने आप को डेवलप कर सके। सो डिप्रेस्ड क्लास एंड वुमेन, महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स लाइक ब्राह्मणाचे कसब, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा असूड एंड सार्वजनिक सत्य धर्म। तो ये कुछ बुक्स थे जो महात्मा फुले ने लिखे थे खुद, सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने के लिए खुद उन्होंने ये बुक लिखे थे। ब्राह्मणाचे कसब, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचे असूड आणि सार्वजनिक सत्य, ये कुछ बुक्स थी, उन्होंने ये बुक्स लिखी थी खुद ने। सत्यशोधक समाज के ओनर महात्मा फुले ने ये 4 बुक्स लिखी थी। कौन सी 4 बुक्स थी? द 4 बुक्स वर ब्राह्मणाचे कसब, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा असूड आणि सार्वजनिक सत्य धर्म। He severely criticized the traditions and customs that made discrimination between man and woman or rather human being himself। और इन्होंने, महात्मा ज्योतिराव फुले ने जितने भी ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स थे जिनसे हम भेदभाव करते थे बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो ऐसे सभी ट्रेडिशंस और कस्टम्स को उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये सब कस्टम्स और सिस्टम्स होने ही नहीं चाहिए सोसाइटी में, और रेदर ह्यूमन बीइंग में ऐसा कोई, एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में ऐसा कोई डिफरेंस कभी होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ऑल आर बोर्न इक्वल, सभी को इक्वल राइट मिलने चाहिए। नेक्स्ट हम कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले का तो हो गया, अभी नेक्स्ट हम करेंगे आर्य समाज। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। ये भी बिफोर इंडिपेंडेंस का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज फाउंड किया था, बनाया था। ही रोट द बुक सत्यार्थ प्रकाश एज अ कमेंट्री ऑन वेदास। सत्यार्थ प्रकाश एक बुक लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये इन्होंने लिखी है एज अ कमेंट्री ऑन वेदास। कमेंट्री ऑन वेदास मतलब आप बोल सकते हो अ डिस्क्रिप्टिव स्पोकन अकाउंट, यानी कि डिटेल में वेदास के बारे में उन्होंने लिखा है। वेदास कितने अच्छे हैं, वी शुड फॉलो वेदास, ये उन्होंने बताया है। सो एक बहुत ही बढ़िया बुक उन्होंने लिखी है, दैट इज नोन एज सत्यार्थ प्रकाश, दैट इज लाइट ऑन ट्रुथ। सत्यार्थ प्रकाश, लाइट ऑन ट्रुथ। एंशिएंट वैदिक रिलीजन इज ट्रू रिलीजन। उनके हिसाब से जो एंशिएंट, पुराना जो वैदिक रिलीजन है हमारा, वही सच्चा रिलीजन है, जिस रिलीजन में कोई क्लास कास्ट नहीं होता था, है ना, कोई प्लेस नहीं था, कास्टिज्म तो उसमें था ही नहीं वैदिक रिलीजन में। ही एसोर्टेड दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी, प्लस उन्होंने ये भी कहा, राजा राम मोहन रॉय ने, कि जेंडर इक्वालिटी यानी मेन और वुमेन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी। गो बैक टू द वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ द आर्य समाज। गो बैक टू द वेदास यानी कि आप वेदास की तरफ रुख करो, ये स्लोगन था आर्य समाज का। दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, गो बैक टू द वेदास। दिस वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज। द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज वर ओपनड ऑल ओवर इंडिया, और ऑल ओवर इंडिया जहां जहां पर भी ब्रांचेस थे आर्य समाज के, वो सभी के लिए ओपन थे। मतलब वहां पर कोई भी जा सकता है, कोई, क्योंकि वहां पर कोई कास्ट, धर्म, जाति, रिलीजन कुछ नहीं है, ऑल आर इक्वल। मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज, और ये आर्य समाज के मीडियम से बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप किए गए थे। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंदा। अभी स्वामी विवेकानंदा इज ऑल्सो वन सच ग्रेट पर्सनैलिटी। उन्होंने स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन, एंड
Swami Vivekananda was a very close disciple of Ramakrishna Paramhansa. Ramakrishna Paramhansa was also a very great personality, और उनका डिसाइपल यानी फॉलोअर, वेरी क्लोज यानी बहुत ही क्लोजली उनके मतलब गुरु के बहुत ही नज़दीकी शिष्य बोलते ना, बहुत ही प्यारा शिष्य, वैसे थे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का। और इसीलिए अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने ये रामकृष्णा मिशन जो है एक इस्टेब्लिश किया था स्वामी विवेकानंदा ने। और ये मिशन स्पेशली था टू प्रोवाइड सर्विस टू ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड। ये मिशन जैसे दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स का काम था वैसा नहीं कर रहे था। ये मिशन जो था दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सोशल सर्विस, जैसे प्रोवाइडिंग हेल्प टू द फेमाइन स्ट्राइकन पीपल, जहाँ पर भी फेमाइंस वगैरह हो गई है ऐसे लोगों को हेल्प करना, जिन लोगों को मेडिकेशन की ज़रूरत है उनको मेडिसिन देना, जो भी पुअर थे उनको हेल्प करना, फीमेल एजुकेशन मतलब जो फीमेल्स है वुमेन्स है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी अपने आप को जानो, स्पिरिचुअल ग्रोथ। इन सब चीज़ों में स्वामी विवेकानंदा ने जो रामकृष्णा परमहंस था, ये रामकृष्णा मिशन जो था इनका, ये मिशन में ये सर्विस देते थे पूरी तरीके से। एंड स्वामी विवेकानंदा वॉज एन एक्सीलेंट ओरेटर मतलब स्पीकर। अगर वो स्पीच देने खड़े हो जाते थे ना तो सब लोग चुप हो जाते थे सिर्फ उनको सुनने के लिए। ही वॉज एन एक्सीलेंट ओरेटर। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस एट शिकागो इन 1893 एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म। उन्होंने शिकागो में एक उन्होंने शिकागो में 1893 में एक पार्लियामेंट में एक रिलीजियंस के ऊपर एक मीट हुई थी। तो वो मीट जो है रिलीजियंस का, पार्लियामेंट में जो रिलीजियंस का मीट था वो मीट अटेंड करने के लिए वो शिकागो गए थे इन 1893, और वो हिंदुइज्म का रिप्रेजेंटेटिव करने गए थे वहाँ पर, हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे। सो दिस कैन कम एज फिलर। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड was the message given by him to the Indian youth। और इन्होंने स्वामी विवेकानंदा ने जो मैसेज दिया था यूथ को वो ये था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाता है। क्या था? अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। सोशल रिफॉर्म्स अमॉन्ग द सिख लोगों में भी सोशल रिफॉर्म्स हुआ था। सिंह सभा जो है वो बुलाई गई थी अमृतसर में। इट वॉज एस्टैब्लिश एट अमृतसर टू अचीव रिफॉर्म्स इन द सिख रिलीजन। सिख रिलीजन भी बहुत ही माइनॉरिटी में है, छोटा रिलीजन था उस वक्त। तो एक सिंह सभा बुलाई गई थी, जितने भी सिख लोग थे उन सभी लोगों के लिए एक सभा बुलाई गई थी जो कि अमृतसर में इस्टेब्लिश हुआ था ये। एंड ये बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स इन द सिख रिलीजन। एंड दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग द सिख कम्युनिटी। और ये इंस्टीट्यूशन जो है सिख कम्युनिटी में एजुकेशन लाने के लिए इन्होंने काम किया है। एंड ब्रिंग इन मॉडर्नाइजेशन अमॉन्ग देम। लेटर अकाली मूवमेंट कंटिन्यूड देयर ट्रेडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन। और फिर बाद में अकाली दल जो थे उन्होंने उनका जो मूवमेंट है वो फॉलो किया रिफॉर्मेशन लाने का। नाउ नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आ गए हैं, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ वुमेन। Women were not free since long period. They were not free. They were under a lot of bonds, shackles. बहुत सारी जंजीरें थी, बहुत सारे इल कस्टम्स थे उनके खिलाफ। तो ये इतने सारे कस्टम्स थे कि अगर हम कभी सुनते हैं तो हमें गुस्सा आता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कस्टम्स थे। ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी मिजरेबल। यानी जिस दौर में ब्रिटिशर्स अपना रूल इंडिया में एक्सपांड कर रहे थे उस दौर में इंडिया में वुमेन्स की कंडीशन बहुत ही बदतर थी, बेकार थी। दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। सबसे पहली चीज, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। प्लस चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम। चाइल्ड मैरिज यानी बचपन में ही शादी कर देते थे। डाउरी सिस्टम यानी दहेज देना। सती यानी कि हस्बैंड के डेथ पे खुद को भी उस चिता पे जला देना। या केशवापन यानी कि अपने बाल दे देना। जैसे अगर हस्बैंड मर गया है तो अपना सर पूरा शेव करवा लो, दैट मतलब बाल नहीं होने चाहिए सर पे।
opposition to widow remarriage, such customs prevailed in the society. तो ये जो है opposition to widow remarriage, ये भी बहुत सारे customs जो है सोसाइटी में प्रिवेल हो रही थी. The then governor Lord Bentinck took help of social reformers like Raja Ram Mohan Roy to pass the sati prohibition. The then governor Lord Bentinck took help of social reformers like Raja Ram Mohan Roy to pass the Sati Prohibition Act. तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक उनका नाम था. तो हमने ये 3rd चैप्टर में किया है ये चीज कि उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के हेल्प से सती प्रोहिबिशन एक्ट पास करवाया. मतलब अगर हस्बैंड मर जाता है तो वुमेन, उसकी वाइफ सती नहीं होगी. शी वोंट बर्न हरसेल्फ अलाइव on the deathbed of a husband. Gopal Hari Deshmukh, popularly known as Lok Hitwadi, advocated gender equality through his writings in Shatpatre. ये फिलअप के लिए पूछ सकते हैं. गोपाल हरि देशमुख, he was also popularly known as लोक हितवाड़ी. गोपाल हरि देशमुख को पॉपुलरली लोग लोक हितवाड़ी कहते थे. एंड ही एडवोकेटेड, उनका यही मानना था कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, जेंडर इक्वलिटी. और उन्होंने ये कैसे एडवोकेट किया? उन्होंने अपने राइटिंग्स शतपत्रे 100 लेटर्स, एक बुक है उनकी, नॉवेल पूरी एक बुक है, 100 लेटर्स के द्वारा उन्होंने ये चीज को एडवोकेट किए, लोगों के सामने लाई है दैट देयर शुड बी नो जेंडर इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. इनफैक्ट मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल. इन 1848 महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एट भिडेवाड़ा इन पुणे. 1848 में, ये फिलअप के लिए अगेन ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं. महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एट भिडेवाड़ा इन पुणे. महात्मा फुले ने स्टार्ट किया था गर्ल्स के लिए, लेकिन क्योंकि वो मेल थे, वो बॉय थे, इसीलिए गर्ल्स लोगों को जल्दी से लोग उनके पास पढ़ने नहीं भेजते थे. तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को जो कि इलिटरेट थी पहले ही, उसको एडुकेट किया और फिर उनको कहा गर्ल्स को पढ़ाने के लिए. तो जो लोग डरते थे कि नहीं हम आदमी के पास नहीं भेजेंगे हमारी बेटियों को पढ़ने, तो अब वुमेन के पास भेजना है, तो दे ऑल वर रेडी. तो उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया. तो सावित्रीबाई फुले जो है उनकी वाइफ, उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट किया था महात्मा फुले को. एंड शी हैड टू फेस ग्रेट क्रिटिसिज्म फ्रॉम द सोसाइटी. लोगों से उनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था सावित्रीबाई फुले को, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को टू कीप टीचिंग द गर्ल चिल्ड्रन नहीं छोड़ा. उन्होंने अपना काम जो है एडुकेशन में चालू रखा. महात्मा फुले द बाल हत्या प्रबंधक गृह इन हिज ओन, महात्मा फुले इस्टेब्लिश्ड द बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन हिज ओन हाउस. उन्होंने अपने ही घर में एक ऐसा प्लेस इस्टेब्लिश किया, गृह मीन्स घर, प्लेस, जहां पर बाल हत्या प्रतिबंधक यानी कि चाइल्ड में, अर्ली चाइल्ड को मार देना जो होता था पहले कि गर्ल चाइल्ड हो गई तो उसको मार देते थे. तो वो चीज के लिए उन्होंने अपने ही घर में एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जैसा स्टार्ट किया कि अगर कहीं पर कोई बच्चा होता है और वो लड़की होती है तो उसको ना मारे, ये काम देखना उनका काम था. Also, he conducted a strike of barbers against the custom of shaving the heads of the widows. उन्होंने बार्बर्स लोगों का स्ट्राइक करवाया था क्योंकि बार्बर्स लोगों से ये काम करवाया जाता था वुमेन्स का हेड शेव करने का. आफ्टर देयर हस्बैंड डाइज, उनके हेड को शेव करने का, यानी बाल निकाल देने का. तो ये बार्बर्स, नाभिक लोग जो कहते हैं, बार्बर्स लोगों का स्ट्राइक करवाया था इन्होंने. हाँ, महात्मा ज्योतिराव फुले ने बार्बर्स लोगों को ही लेकर स्ट्राइक किया कि नो बार्बर इज गोइंग टू शेव द हेड ऑफ अ वुमेन. फॉर गेनिंग परमिशन टू विडो रीमैरिज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड वीरेशलिंगम टुक अप स्पेशल एफर्ट्स. अब विडो रीमैरिज के लिए, यानी अगर विडोज हो गए हैं तो उनकी रीमैरिज, अगर यंग एज में विडो हो गए हैं तो उनकी रीमैरिज करवानी चाहिए. तो इस चीज को, ये लॉ को पास करवाने के लिए, ये एक्ट को पास करवाने के लिए देयर वर सम रिफॉर्मर्स सच एज पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड वीरेशलिंगम. दिस लीडर्स टुक अप स्पेशल एफर्ट्स. ये नेम द फॉलोइंग में आ सकता है.
या ऑड मैन आउट में आ सकता है। आउट ऑफ दिस 3, 3 एक और आपको नाम दे देंगे 3 के साथ में, या इन 3 में से कोई एक दूसरा नाम दे देंगे, तो दिस कैन कम एज ऑड मैन आउट ऑल्सो और फिल द ब्लैंक्स ऑल्सो। इन हिज न्यूज पेपर सुधारक गोपाल गणेश आगरकर गेव हिज स्टॉन्च ओपिनियन अबाउट चाइल्ड मैरिज, लॉ ऑफ कंसेंट। अब ये जो गोपाल गणेश आगरकर है, उन्होंने न्यूज़पेपर चालू किया था सुधारक। ओके, सुधारक मीन्स टू इम्प्रूव। तो उनका जो न्यूज़पेपर था इट वाज फॉर द टू इम्प्रूव द सोसाइटी। तो इन हिज न्यूज़पेपर सुधारक गोपाल गणेश आगरकर गेव हिज स्टॉन्च ओपिनियन, मतलब अपने कट्टर विचार जो उन्होंने रखे अबाउट चाइल्ड मैरिज, लॉ ऑफ कंसेंट, मतलब चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, इंस्टेड एक लॉ ऐसा पास होना चाहिए जिसमें मैरिजेबल एज फिक्स हो जाए। और इसी के वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से एक मैरिजेबल एज जो है वो बाद में फिक्स कर दी गई थी। फॉर गर्ल्स इट वाज 12 एंड देन बॉयज इट वाज 14, लेकिन बाद में फिर वो वापस से बढ़ाया था, गर्ल्स के लिए 14, बॉयज के लिए कुछ और। तो कुछ एज ऐसे करते करते फाइनली गर्ल्स की अभी 18 ईयर्स फिक्स हो गई है एंड बॉयज के लिए 21। महर्षि विठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी। तो जो महर्षि विठल रामजी शिंदे हैं, इन्होंने देवदासी सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। देवदासी बहुत ही खराब कस्टम जो चला आ रहा था कि अगर आपकी डॉटर होती है, बेटी होती है, तो बेटी को आप मंदिर में दान दे देते हो एज अ दासी, बचपन में ही, जब पैदा होते हैं तभी ही। तो वो वहीं पर मंदिर में ही पलती बढ़ती है। शी विल नॉट मैरी देवदासी, शी विल रिमेन वर्जिन थ्रू आउट हर लाइफ। बट वो जो देवदासी सिस्टम था इट वॉज वेरी बैड, वेरी बैड, और बहुत सारे इल इफेक्ट्स उसके वजह से आने लग गए थे। इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे वेरी फियर्सली पुट अप हर व्यूज अबाउट वुमेन्स राइट्स। ताराबाई शिंदे, अ वेरी स्टॉन्च राइटर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग राइटर, उन्होंने एक बुक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। ये मोस्टली ये चीज आपकी फिलअप के लिए या मैच द कॉलम के लिए आती है। और इन्होंने बहुत ही फियर्सली, ब्रेवली, एकदम बोल्डली व्यूज अपने रखे थे वुमेन्स राइट्स के बारे में। स्त्री पुरुष तुलना में वुमेन्स राइट्स के बारे में अपने व्यूज इन्होंने रखे थे ताराबाई शिंदे ने। महर्षि ढोंडव केशव, महर्षि ढोंडो कर्वे, ही स्टार्टेड द अनाथ बालिका आश्रम एन ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स। तो महर्षि ढोंडो कर्वे ने अनाथ बालिका आश्रम स्टार्ट किया। दैट मीन्स दोज गर्ल्स हु डोंट हैव पेरेंट्स, उनके लिए एक ऑर्फनेज स्टार्ट किया। और उनका इंटेंशन क्या था ये ऑर्फनेज स्टार्ट करने का पीछे, जो महर्षि ढोंडो कर्वे हैं, इनका इंटेंशन ये था कि दे कैन गिव एजुकेशन टू द वुमेन्स थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दे कैन मेक देम स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। मतलब उनको एजुकेशन देकर उनको अपने खुद के पैरों पर खड़ा कर सके, ये उनका इंटेंशन था। थ्रू हिज एफर्ट्स द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी वॉज सेट अप इन द 20th सेंचुरी। और महर्षि ढोंडो कर्वे की वजह से ही, उनके एफर्ट्स के वजह से ही पहली वुमेन्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो पाई थी 20th सेंचुरी में। पंडिता रामाबाई फाउंडेड द शारदा सदन एंड टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड वुमेन। पंडित रामाबाई ने शारदा सदन बनाया था। शारदा सदन एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन एक भवन टाइप बनाया था और उसको नाम दिया गया था शारदा सदन। और यहाँ पर वो क्या काम करते थे, नर्सिंग करने का काम करते थे, टेक केयर ऑफ ऑल द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। डिसेबल्ड मतलब अपाहिज आप बोल सकते हो, अपाहिज बच्चों के और अपाहिज वुमेन्स के, उनके लिए ये शारदा सदन बनाया गया था, बेसिकली टू सर्व देम। और साथ ही उन्होंने वहाँ पे नर्सिंग कोर्सेज भी स्टार्ट किया था ताकि वुमेन्स को वो कोई कुछ स्किल सिखा सके और ताकि ये वुमेन्स आगे इन स्किल को यूज़ करके अपना जीवन व्यतीत कर सकें, कमा के अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये जो सेवा सदन के माध्यम से उन्होंने नर्सिंग कोर्स स्टार्ट किया था फॉर वुमेन एंड शी डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर वुमेन। उन्होंने वुमेन्स के लिए वोट करने का राइट भी डिमांड किया था, दैट वुमेन्स शुड ऑल्सो बी गिवन द राइट टू वोट। ये किन्होंने किया था, रमाबाई रानडे। थ्रू आर्टिकल्स डॉक्टर अंबेडकर स्पोक अबाउट द इनजस्टिस टुवर्ड्स वुमेन। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भी इनजस्टिस टुवर्ड्स द वुमेन पे अपने आर्टिकल्स के थ्रू बोला है। महात्मा गांधी ऑल्सो एडवोकेटेड एजुकेशन ऑफ वुमेन। महात्मा गांधी ने भी वुमेन्स के एजुकेशन के लिए कहा है कि दे शुड बी गिवन एजुकेशन। वुमेन हैव गिवन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। वुमेन्स हैव गिवन
वुमेन हैव गिवन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। वुमेन ने फ्रीडम मूवमेंट में भी काफ़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। वुमेन्स रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प्ड इन क्लोजिंग डाउन मैनी अनजस्ट प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी। और ये जो वुमेन्स का रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था ना, हर कोई सोशल रिफॉर्म आ रहा है, वुमेन्स के लिए लड़ रहा है, उनके लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, इन सभी एफर्ट्स के वजह से बहुत सारे अनजस्ट प्रैक्टिसेस जो है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। जैसे सती सिस्टम बंद हो गया था, देवदासी सिस्टम को टाइम लगा लेकिन वो भी बंद हो गया था, चाइल्ड मैरिज बंद हो गया था, डाउरी सिस्टम होता है लेकिन बिना किसी को बताए, ऐसे डाउरी सिस्टम भी इट टेक्स प्लेस। द वॉइस फॉर प्रॉब्लम्स अगेंस्ट द वुमेन ब्रोक आउट, और वुमेन्स प्रॉब्लम के लिए आवाज आने लगी, और ये और कोई नहीं, वुमेन्स ही थे जो आवाज निकाल रहे थे, आवाज उठा रहे थे। जेंट्स तो थे ही जो अलग अलग अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन देखे, बट वुमेन्स भी थे। द वॉइस फॉर प्रॉब्लम्स अगेंस्ट द वुमेन ब्रोक आउट, वुमेन स्टार्टेड पुटिंग अप देयर ओन थॉट्स थ्रू देयर राइटिंग्स, अपने राइटिंग्स के थ्रू अपने थॉट्स सामने रखने लगे वुमेन्स, वो भी लिखने लगे वुमेन्स। तो वो लिखने कब लगे? एजुकेशन मिलने के बाद। तो एजुकेशन मिलने के बाद उनका बहुत ज़्यादा उनके अंदर बदलाव आने लगा। जैसे कि नॉर्मली ये कहा जाता है ना, इफ़ वन मैन इज एजुकेटेड ओनली दैट मैन इज एजुकेटेड, बट इफ़ अ वुमन इज एजुकेटेड द एंटायर फैमिली इज एजुकेटेड। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े सोशल नेशनल लीडर्स ने भी वुमेन्स को एजुकेशन देना चाहिए, इस पर जोर दिया था। सो द वुमेन स्टार्टेड पुटिंग अप देयर ओन थॉट्स थ्रू देयर राइटिंग्स, अपने ही राइटिंग्स के थ्रू अपने विचार व्यक्त करने लगे। देयर परफॉर्मेंस इन एवरी सेक्टर्स ऑफ लाइफ फ्लरिश ड्यू टू एजुकेशन, और उनका जो परफॉर्मेंस था वो फ्लरिश होने लगा, मतलब बेहतर से बेहतर होने लगा एजुकेशन की वजह से। हर काम में उनका जो परफॉर्मेंस है इट स्टार्टेड बिकमिंग बेटर एंड बेटर। रिलीजियस रिफॉर्म्स अमंग द मुस्लिम्स, अभी मुस्लिम्स में भी, अभी ये तो हमने पूरा वुमेन्स के ऊपर देख लिया, अभी मुस्लिम्स के मुस्लिम कम्युनिटी में भी रिफॉर्म्स लाया गया था। अब्दुल लतीफ started the social reform among the Muslim community. He established the Mohammedan Literary Society in Bengal. ये फिलअप के लिए आता है। Who started? Abdul Latif. He started the Mohammedan Literary Society in Bengal. Next, Sir Syed Ahmad Khan. This is again the most important part which is going to come. Sir Syed Ahmad Khan founded the Mohammedan Anglo-Oriental College. तो सर सैयद अहमद खान ने ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टार्ट की थी, उसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था। तो ये जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इट वाज लेटर नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एंड ही एडवोकेटेड वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को एडवोकेट किया, यानी लोगों को बताया कि दे शुड फॉलो वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। He firmly believed that Muslims could make progress only by studying modern education and science. और सर सैयद अहमद खान का भी ये प्रॉपर मानना था कि a woman can progress or a Muslim can progress only if it take a proper modern education and learn science. यानी उन्हें बराबर पता है कि अगर वो एजुकेशन लेंगे, साइंस पढ़ेंगे, तो ही उनकी कम्युनिटी प्रोग्रेस कर पाएगी, और प्रोग्रेस करने के लिए ज़रूरी है पढ़ना है। मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी, अब जैसे मुस्लिम्स कम्युनिटी में हुआ है वैसे हिंदू सोसाइटी में भी कुछ मूवमेंट हुए हैं। इन 1915 हिंदू महासभा वॉज एस्टैब्लिश्ड टू गिव अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन टू द हिंदू कम्युनिटी। तो बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था 1915 में, हिंदू महासभा को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि हिंदू कम्युनिटी को एक प्रॉपर रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिल सके। पंडित मदन मोहन मालविया लेड द फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये फिलअप के लिए पूछ सकते हैं, पंडित मदन मोहन मालविया लेड द फाउंडेशन ऑफ डैश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या मैच द कॉलम में भी आ सकता है। तो ये यूनिवर्सिटी उन्होंने फॉर्म की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डॉक्टर केशव बलीराम हेजवार इन 1925 इस्टेब्लिश्ड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एट नागपुर। यानी 1915 में तो हिंदू महासभा ऑर्गेनाइज हुई थी, और 1925 में डॉक्टर केशव बलीराम हेजवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में ये इस्टेब्लिश किया था।
Its aim was to set up a disciplinary and virtuous action organization of Hindu. उनका एम क्या था? एक डिसिप्लिनरी यानी कि जो डिसिप्लिन में चले, और वर्चुअस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू. वर्चुअस ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप बोल सकते हो अ वन हैविंग और शोइंग अ मॉरल स्टैंडर्ड. सो वर्चुअस ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक मॉरल स्टैंडर्ड है आप में, आप ज़्यादा गिरी हुई हरकतें नहीं करते हो, लाइक यू डू समथिंग रियली गुड. तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टार्ट किया था ऑफ हिंदू यूथ. वी.डी. सावरकर बिल्ट द पतित पावन टेम्पल एट रत्नागिरी. वी.डी. सावरकर ने पतित पावन टेम्पल रत्नागिरी में बनाया था एंड दैट टेम्पल वॉज ओपन टू ऑल कास्ट. उस वक्त कैसा था? कास्ट सिस्टम चलता था, तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर टेम्पल्स थे जहां पर दलित लोग एंटर नहीं कर पाते थे, दलित लोगों को एंट्री प्रोहिबिटेड थी. लेकिन यहाँ पर जो वी.डी. सावरकर ने पतित पावन टेम्पल बनाया, इट वॉज ओपन फॉर all castes of Hindu religion. Common dining programs were also arranged. Common dining programs मतलब साथ में बैठकर खाना खाना, इस टाइप के प्रोग्राम्स भी अरेंज किए थे. ये क्यों अरेंज किया था? ताकि आपस में मेलजोल बढ़े. नाउ डू यू नो हम एक बार सिर्फ रीड कर लेते हैं, बाकी एंड हो गया है हमारा चैप्टर. मैनिफेस्टेशन एट रेनेसांस इन अदर एरियाज. अभी जैसे हमने देखा कि किस तरीके से सोशल रिफॉर्म्स में, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, लीडर्स आगे आए और बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश किए, तो उसी तरीके से दूसरे एरियाज में भी चेंजेस हुए. ऐसा नहीं है कि खाली सोशल रिफॉर्म्स ही हुए हैं या रिलीजियस रिफॉर्म्स ही हुए हैं या वुमेन्स में ही चेंजेस लाए हैं. ऐसे बहुत सारे एरियाज थे, जैसे आर्ट एंड लिटरेचर बोल दो. उस दौरान देखो रविंद्रनाथ टैगोर और C.V. रमन, इनको नोबेल प्राइज मिला था उसी दौरान. रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में मिला था एंड C.V. रमन को साइंस के लिए मिला था नोबेल प्राइज. ये ने सोचो उस वक्त इंडियंस कितना आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि कितना आगे, कुछ तो ऑलरेडी बहुत आगे थे, उन्हें प्राइज मिला गया. तो ये प्रोग्रेस था दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अप मॉडर्न इंडिया. ये प्रोग्रेस जो है मॉडर्न इंडिया को बिल्डअप करने के लिए उनको रिस्पॉन्स मिला था. बहुत सारे स्टोरीज, नॉवेल्स, इंस्पिरेशन टू गेन इंडिपेंडेंस उस वक्त छापे गए थे लिटरेचर के अंदर. दे ऑल्सो एक्सप्रेस थॉट्स ऑन सोशल रिफॉर्म्स एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन ऑल्सो टुक अप राइटिंग. इसी दौरान वुमेन्स ने भी राइटिंग किया. हमने देखा स्त्री पुरुष तुलना है, फिर रानडे है, रमाबाई रानडे. न्यू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बिकेम अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो है वो पब्लिश होने लग गए थे ताकि लोगों में अवेयरनेस फैला सके. प्लस उस वक्त डेवलपमेंट हुआ था फील्ड ऑफ आर्ट में भी. आर्ट में जैसे म्यूजिक जो है बहुत पॉपुलर हो रहा था लोगों के बीच में. इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल को कंबाइन करके एक न्यू पेंटिंग बनाया जा रहा था. बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे ऑन साइंस. पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट एक्सपेरिमेंटेशन एंड साइंटिफिक एटीट्यूड वर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. लोगों ने ये रियलाइज करना शुरू किया कि अगर हमें हमारी कंट्री को प्रोग्रेस दिलानी है तो हमें हमारा एटीट्यूड जो है साइंटिफिक रखना होगा और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए. तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द मूवमेंट ऑफ रेनेसांस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म, मतलब हमारा जो ये मूवमेंट ऑफ रेनेसांस था, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी मीन्स इक्वल स्टेटस फॉर ऑल एंड नेशनलिज्म मीन्स देशभक्ति. द इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स सेट अप अ नेशन वाइड पॉलिटिकल मूवमेंट. तो एक नेशन वाइड पॉलिटिकल मूवमेंट जो है इन इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स ने बना दिया था.